নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নৱগগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিকছ কাৰেণ্ট। আপৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ অভিযোগ আবকাৰী নীতিৰ কেলেংকাৰী ধন আপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই অভিযোগ আনিছে বিজেপিয়ে। গোৱা আৰু পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে আপে সেই ধন আৰু সংবাদ মেলযোগে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ নেতা শুভংশু ত্ৰিবেদীয়ে। জনাইছো অভিষেক এই মুহূৰ্তত ডিকছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক যে আপৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিয়ে ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি। আবকাৰী নীতিৰ কেলেংকাৰী ধন আপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু গোৱা লগতে পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আপে সেই ধন। সংবাদ মেলযোগে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ নেতা শুভংশু ত্ৰিবেদী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শুভংশু ত্ৰিবেদীয়ে। আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু আপৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ বিজেপিয়ে ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংবাদ মেলযোগে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আবকাৰী নীতিৰ যি কেলেংকাৰী বা সেই ধন, সেই সমুদায় ধন আপে গোৱা আৰু পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপিয়ে। বা আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি। আপৰ বিৰুদ্ধে ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে। আবকাৰী নীতি অৰ্থাৎ দিল্লীৰ যি আবকাৰী নীতি আৰু সেই কেলেংকাৰীত জড়িত থকা বা সেই কেলেংকাৰীৰ যি ধন, সেই সমুদায় ধন আপে অৰ্থাৎ আম আদমি পাৰ্টীয়ে গোৱা আৰু পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু সংবাদ মেলযোগে এই অভিযোগ বিজেপিৰ নেতা শুভংশু ত্ৰিবেদী আৰু এইগৰাকী শুভংশু ত্ৰিবেদীৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো অৰ্থাৎ বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ তেখেত নেতা আৰু তেখেতেই আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আপৰ বিৰুদ্ধে যি বিজেপিয়ে ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আবকাৰী নীতিৰ যি কেলেংকাৰী আৰু সেই সমুদায় ধন যি কেলেংকাৰী ধন, সেই সমূহ ধন আপে গোৱা আৰু পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ নেতা শুভংশু ত্ৰিবেদী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত কি মন্তব্য বা কি সংবাদ মেলযোগে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। दावा करने वाली पार्टी की शराब जो जो पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थी जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड है। उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है।
और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांड को ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्प्रिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था, और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्ट्रिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले के बोले गए वो बात? और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इसमें एडवांस, कैश, एडजस्टमेंट, लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं।
यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं, जहरीली भी हो गई है। और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब